Good morning students, this is Rubina as the assistant professor in fashion department, Raya University, Ahmedabad. Today my topic is principle of design. In previous lecture we have already discussed about the elements of design. So there is a lots of connectivity between elements of design and principle of design. So what is this connectivity? The first is the principle of design. The basic principle of design include: first is proportion, second is balance, third is emphasis, fourth is rhythm, and fifth is harmony. So first, what is proportion? Proportion is the spatial or size relationship of all parts in a design to each other and to the whole. It is sometimes called scale. Second, determined by how the total design is divided and the inner line arranged. Most pleasing when garment area are divided unevenly and coordinated with the structure and proportion of the person wearing the outfit. में भी ऐसा हो सकता है कि कोई भी डिज़ाइन जब हमने बनाया उसके अंदर जो हमने डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ करे, लाइक लाइन, शेप, टेक्सचर, कलर, सो चाहे वो उस डिज़ाइंस के अंदर, उस ऑल ओवर स्ट्रक्चर के अंदर वो सब अनबैलेंस्ड है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है. सो मे भी हो सकता है शेप कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कलर्स हमने एकदम अपोजिट यूज़ किए हैं. सो लेकिन उसका ऑल ओवर एक स्ट्रक्चर में हम उसको अरेंज कैसे करते हैं, दैट इज़ अ प्रोपोर्शन. सो see this image, that is the best example of proportion. Standard of proportion change with fashion cycle. फैशन का जो साइकिल होता है दैट इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म. वो ऐसा नहीं, फैशन का जो लाइफ साइकिल होता है वो बहुत शॉर्ट होता है. फैशन बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस हुआ, एकदम से पिक पे जाता है और एकदम से ख़त्म हो जाता है. तो जो फैशन का लाइफ साइकिल है वो चेंज होता रहता है. उसी के अकॉर्डिंग ही जो प्रोपोर्शन का स्टैंडर्ड है वो भी रेपिडली चेंज होता है. अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन इन शिल्यूट एंड द लाइन, द लेंथ एंड साइज ऑफ डिज़ाइन फीचर्स लाइक पॉकेट्स, ट्रिमिंग और पार्ट्स ऑफ गारमेंट्स विद इन अ शिल्यूट शुड कॉम्प्लीमेंट द होल. सी दिस इज द बैगी काइंड ऑफ टॉप, लूजर, एंड देयर इज सम प्रिंट्स, दैट इज द अनइवन प्रिंट्स, दैट इज़ द बिग प्रिंट्स. लेकिन इसको एक ऑल ओवर स्ट्रक्चर में हमने इसको जिस तरीके से मैनेज किया है, प्रोपोर्शन, एक प्रोपोर्शन लुक आई है. सो दैट इज़ अ प्रोपोर्शन. नेक्स्ट इज बैलेंस. नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन इज बैलेंस. बैलेंस गिव इक्विलिब्रियम टू डिज़ाइन विद ऑल sides appearing equal in weight or power of attraction. Formal balance is the most common with identical details arranged the same distance from the center. Third is informal balance is asymmetrical with part placed unequally from the center. Balance, किसी भी चीज़ को, कोई भी डिज़ाइंस है उसको बैलेंस करके चलना है, अनइवन नहीं होना चाहिए. लाइक देयर इज़ अ टू टाइप ऑफ बैलेंस. फर्स्ट इज़ फॉर्मल एंड सेकेंड इज़ इनफॉर्मल. फॉर्मल मीन्स सिमेट्रिकल बैलेंस, जिसमें दोनों चीज़ें बैलेंस हो. अगर एक तरफ का साइज़ 34 है तो दूसरी तरफ भी साइज़ 34 ही होगा. अगर हमने एक साइड उसकी शेप स्क्वायर ली है तो अगेन दूसरी साइड भी उसकी शेप स्क्वायर होगी. सो दैट इज़ द सिमेट्रिकल बैलेंस. So informal balance is asymmetrical with the parts placed unequally from the center. So asymmetrical balance is more important in a fashion. So that is the example of symmetrical balance. This portion is equal to this portion, same portion है. So ऐसा जो principle होता है, ऐसा जो होता है, that is a balance, that is a formal. The design composition is same on both side of the garments, same on the both side, which is known as formal balance. The second image is the best example of asymmetrical balance, informal balance. Informal asymmetrical balance involves placements of objects in a way that will allow object of varying visual weight to balance one another. So जो ये स्टेप हम इस शोल्डर पे दी है, अगर यही स्टेप हम इस शोल्डर पे देते तो ये एक फॉर्मल बैलेंस होता, सिमेट्रिकल बैलेंस होता. बट
ये बैलेंस नहीं हुआ क्योंकि हमने इस शोल्डर को कवर किया है, इस शोल्डर को कवर नहीं किया, सो दैट इज अ asymmetrical balance. This is also the best example of asymmetrical balance. This is also. So next is emphasis. Third principles of fashion designing is emphasis, the focal point of the fashion. कभी भी क्या होता है, कोई भी हम डिज़ाइंस बनाते हैं, तो जो हमारा बेस्ट पार्ट होता है, जो हमारा बेस्ट पार्ट इन द सेंस वी कैन से कि जिसमें हमें लगता है कि ये हमारी ड्रेस का फोकल पॉइंट है, हो सकता है, सो उसकी प्लेसमेंट हम पूरे गारमेंट्स में कहाँ करते हैं, दैट इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट. तो दैट इज़ नॉन एज एम्फेसिस. जो हमारा जो बेस्ट एरिया होता है, जो हमारे गारमेंट्स का बेस्ट डिज़ाइन है, हमारे गारमेंट्स का बेस्ट डिज़ाइन है उसकी एम्ब्रॉयडरी, तो उस एम्ब्रॉयडरी की प्लेसमेंट्स हम अपने डिज़ाइन में कहाँ करेंगे, सेंटर में करें, शोल्डर पे करें, स्लीव्स पे करें, कहाँ करें कि एकदम से जब हमारा उस डिज़ाइंस पे ध्यान जाए तो एकदम से सीधा हाईलाइट वही चीज़ हो, प्रोमिनेंट वही चीज़ हो. सो दैट नॉन एज एम्फेसिस. Emphasis, a dominating focal point or center of interest in a garment or an outfit created by the use of line, shape, color, texture and the pattern. These all are the elements of design. In previous lecture we have already discussed about the elements of designs. Second is a point for the eyes to rest on for a period of time. An outfit without a dominant point of interest appear uninteresting, boring and unfinished. See, that is the best example of emphasis, focal point. If we see this dress, एकदम से हमारा focal point ध्यान कहाँ जा रहा है, इस एरिया पे. So that is the focal point of this garments. If we see this image, इसका जो फोकल पॉइंट एकदम से अगर मैं इस पिक को देख रही हूँ, सो इस इमेज को देखती हूँ, सीधा हमारा ध्यान जाता है इस पोर्शन पे. इसका जो नेक लाइन्स है वो फाइनली फिनिश किया गया है एंड इसका जो इन्होंने डार्क कलर का जो टाई लिया है डायगोनल स्ट्रिप्स में. सो एम्फेसिस इज अप एट द नेक लाइन्स क्रिएटेड बाय द लाइट कलर्ड शर्ट एंड द ब्राइट नेक टाई. So in this image that is the focal point. So that is the emphasis. उसकी placement हमें कहाँ करनी है. Second image, emphasis is seen at the design detail added to the front of the jacket, specifically the clasp in the center of the design. So in this image that is the focal point of this garments. Next is rhythm. Rhythm we can say continuity. जब भी हम कोई डिज़ाइन देखते हैं तो उसमें एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि कोई चीज़ हमने डिज़ाइन क्रिएट की है, कोई लाइन ब्रेक हो रही है, कहीं शेप ब्रेक हो रही है, एक कंटिन्यूटी रहनी चाहिए. सो दैट इज रिदम प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ मूवमेंट थ्रू द लाइन्स एंड स्पेस ऑफ अ डिज़ाइन. द मेन वेज टू क्रिएट इट आर बाय द रिपीटेशन, ग्रेडिएशन और रेडिएशन. व्हाट इज ग्रेडिएशन? ग्रेडिएशंस क्या होता है, किसी भी चीज़ को जब हम बढ़ाते हैं, सपोज हमने कोई स्मॉल साइज़ लिया, उसको मीडियम बनाया, थोड़ा सा और उसको एक्सटेंड किया, वो लार्ज बना, थोड़ा सा और उसको एक्सटेंड किया, दैट इज द एक्सेल. सो द प्रोसेस इज द ग्रेडिएशन. सेकेंड, द इमेज एग्जाम्पल ऑफ रिदम. सी दिस इमेज. अगर हम इसका शेप देखें, सो इसके शेप जो है, इनकी जो प्लेसमेंट्स है वो बहुत ही सिस्टमेटिक हुई है. सो अगर हम इसमें देखते हैं तो एक देखते ही कंटिन्यूटी है. सेम दिस इमेज, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं हो रहा, लाइन का शेप सही है. सो एकदम से जो देखते ही कंटिन्यूटी आ रही है. रिदम इज अ सेंस ऑफ मूवमेंट एंड इज नेसेसरी टू क्रिएट इंटरेस्ट इन अ डिज़ाइन एंड कैरी आउट द सेंट्रल थीम. Rhythm can be achieved by the repetition, lines, shapes and color to get direction. जब हम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइंस को क्रिएट करने के लिए, जब हम अगेन एक शेप को हमने यूज़ किया, हम उसको अगेन यूज़ कर रहे हैं, लाइंस ली हैं, उस लाइंस को हम अगेन यूज़ कर रहे हैं, सो उससे कंटिन्यूटी क्रिएट होती है. सी दिस इमेज, हमने एक वर्टिकल लाइंस का हमने कलर फिल किया है, यहाँ पे लिया, फिर हमने अगेन एंड अगेन इसको रिपीट किया है. सो देयर इज क्रिएट अ कंटिन्यूटी. अब ये प्रिंट हमने यहाँ लिया, इसी को हमने जगह लिया है, सेम प्रिंट को हमने रिपीट किया है, सेम शेप को हमने रिपीट किया है.
सो दैट इज़ अ रिदम, एक रिदम क्रिएट होती है. एंड द नेक्स्ट इज हारमोनी. व्हाट इज हारमोनी? हारमोनी वी कैन से कि जब हम इन प्रिंसिपल्स को यूज़ कर दिया उसके बाद एक जो ऑल ओवर इफेक्ट्स आता है दैट इज नोन एज हारमोनी. सो हारमोनी इज प्लेसिंग विजुअल यूनिटी ऑफ अ डिज़ाइन क्रिएटेड बाय अ टेस्टफुल रिलेशनशिप अमंग ऑल पार्ट्स विद इन अ होल. नेक्स्ट, garment that have harmony are pleasing to the eye, suit the wearer. So garment that have harmony are pleasing to the eye and suit the wearer. When a total design is good, the overall effect is harmonious. So next is see this image. इस इमेज में हमने एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन जो लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर उन सब का यूज़ किया, प्रिंसिपल्स का यूज़ किया. इसमें देखिए ये सिमेट्रिकल बैलेंस है अगर हम देखें तो. तो अब इसका यूज़ करने के बाद जो इसकी एक ऑल ओवर लुक आ रही है वो दैट इज़ अ परफेक्ट लुक. सो दैट इज़ अ harmony. A successful design is achieved when all the elements and principles of design work together. जब उस डिज़ाइंस के सभी एलिमेंट्स और उसके सभी प्रिंसिपल्स मिलके एक जो जब उनका वर्क हुआ, जब हमने उसको यूज़ किया, जो उसका रिजल्ट आया, उसके बाद जो लुक आ रही है, उस ऑल ओवर लुक जो उस गारमेंट्स की आ रही है दैट इज़ अ हारमोनी. द सेकेंड इमेज, सेम कलर, हमने इसमें कितने डिफरेंट कलर्स का यूज़ किया है दैट इज़ अ एलिमेंट्स. और जो इसका हमने ये लिया है, इसका शोल्डर पॉइंट्स बैलेंस्ड है, प्रोपोर्शन में है. सो दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन. जब इसके एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स दोनों को हमने बहुत ही अच्छे से यूज़ किया और उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है उसकी जो एक ऑल ओवर लुक आती है दैट इज़ अ हारमोनी. थैंक यू.